Hello viewers, I am Deepti. Now I am going to solve chemistry paper ICSE Improvement Examination 2026 for class 10. Now question number 1, which is MCQ. Acid plus metal oxide on reaction gives. As you know, metal oxides are basic in nature. So acid plus base gives salt and water. So option number B is correct in this case because they are giving salt and water in this case. Polar covalent compound with two lone pair of electron. In ammonia, we know that one lone pair is there, but in water, we know two lone pairs are there. Option number B is correct. In third, what do you observe? When ammonium hydroxide solution is added first dropwise and then in excess. Then pale blue जो आपका precipitate आएगा पहले में क्योंकि dropwise में वो नहीं होगा dissolve. Then in excess it will dissolve and give a deep blue solution. तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट इन दिस केस. इन फोर्थ पार्ट आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट फॉर ग्रुप 1 एलिमेंट कौन सी है, is or are not true. They are good conductor of heat, this is correct. They are good conductor of electricity, this is also correct. They are strong oxidizing agents, no, they are strong reducing agents. They form covalent compound with non-metal, they form ionic compound or electrovalent compound with non-metal. So both 3 and 4 are incorrect. Option number C is correct in this case. In fifth part, organic compound which undergo substitution reaction. It means substitution किसमें होती है, जो saturated होते हैं. तो saturated इनमें से कौन है, C2H6, ethane is saturated. In sixth part, what do you observe when concentrated hydrochloric acid is added to manganese dioxide? तो क्या होना चाहिए, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड है तो इट मींस क्लोरीन गैस इज लिबरेटेड. तो क्लोरीन का कलर क्या आ जाएगा यहाँ पर, ग्रीनिश येलो गैस. तो ग्रीनिश येलो गैस है और क्लोरीन का ये हमने पढ़ाई हुआ है कि मॉइस्ट स्टार्च आयोडाइड पेपर को ब्लू ब्लैक करता है. तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट इन दिस केस. अगर आप चाहो तो अपनी कन्वीनियंस के लिए रिएक्शन लिख सकते हो कि MnO2 है प्लस HCl है तो MnCl2 वाटर और क्लोरीन गैस बन रही है, जिससे आप आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं. Now, which of the following occupies the maximum volume at STP? As according to Avogadro law, we know that more number of moles, more volume will be occupied. अब 3 mole of hydrogen है तो इसके लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे N is equal to volume of gas divided by 22.4 है, या फिर अगर हमें मास गिवन है तो वेट जो भी गिवन है हमें इन ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास. तो पूरा फॉर्मूला मैंने लिख दिया एक ही बारे में. अब इसके लिए हमें पहले केस की वॉल्यूम निकालनी है. तो फर्स्ट पार्ट में 3 मोल्स ऑफ वॉल्यूम, तो ये N3 है तो 3 इंटू 22.4 इसकी वॉल्यूम ऑक्यूपाइड हो जाएगी ए पार्ट के लिए. बी के लिए क्या है 1 मोल, तो 1 मोल मीन्स 1 इंटू 22.4 हो जाएगा. सी पार्ट के लिए क्या है 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन. तो अब एन को ग्राम के साथ देखेंगे तो कितने मोल हो जाएंगे, एन इज इक्वल टू वेट इन ग्राम कितना दिया है 64, और किस ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है ऑक्सीजन का, दिस इज 32, तो कितना आ जाएगा N2 आ गया. तो वॉल्यूम कितना हो गया 2 इंटू 22.4. और डी के केस में आपके पास क्या आ जाएगा, इसका N कितना निकलेगा, मास इज गिवन एज 44 डिवाइडेड बाय, अगर हम मॉलिक्यूलर मास कार्बन डाइऑक्साइड का निकालेंगे तो 12 प्लस O2 का 32, तो 44/44 यानी 1, तो 22.4. तो सबको कंपेयर करोगे तो 3 इज ग्रेटर. तो यहाँ पर 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट. Now in 8th part, table below shows the atomic number of element x, y, w, x, y, z. तो w का कितना आ जाएगा 4 है तो 2, 13 का 2, 8 and then 3, 7 का 2 and 5, 10 का 2 and 8. Now which of the following elements will combine to form an electrovalent bond? यानी एक देगा और एक लेगा, मेटल होगा और नॉन मेटल होगा. तो मेटल इसमें 3 वाला है जिसके पास एक्सेस है, इसके पास कमी है, तो 13 और 7 वाला यानी x and y. तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट इन दिस केस, x and y. Next is assertion. Novel gases are unreactive under standard condition. Reason is novel gases have complete valence shells, making them stable and less likely to gain or lose electron. Both assertion and reason are true, and R is the correct explanation. This is option number 9. In 10th part, process of dressing, जिसको concentration of ore बोलते हैं, involves separation of ore from gangue due to preferential wetting. Is this method is froth flotation, जिसमें ore is lighter, comes on the surface, will froth and impurities left behind. तो froth flotation method. In 11th part, if an element A belongs to period 3 and group 2, तो period 3 means KLM and group 2 means 2, 8 and last shell by 2.
तो इट मीन्स 3 शेल्स हो गए और 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आपके पास आउटर मोस्ट शेल में है, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। वेपर डेंसिटी ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला वी नो दैट मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय 2, किसका निकालना है हमने, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यानी NO2, तो NO2 का नाइट्रोजन का 14 NO2 का 32 डिवाइडेड बाय 2, इट मीन्स 46 divided by 2, it means 23, so option number D is correct in this case। 13th is metallic and non-metallic elements can both be extracted by electrolysis, which of the following will undergo reduction at electrode। तो अब रिडक्शन क्या मतलब क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है, कैथोड पे यानी नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे। अब ब्रोमीन, क्लोरीन और ऑक्सीजन तो नॉन मेटल्स हैं, तो नॉन मेटल्स हैं तो दे ऑक्सीडाइज एट एनोड, तो इसमें से सिर्फ हाइड्रोजन है जो H+ आयन होगा, इट गेन्स इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म हाइड्रोजन गैस, तो वो हमारा कैथोड पे फॉर्म कर सकता है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। Now sodium is in group 1 of the periodic table and chlorine is group 17. Which statement correctly describe what happens when sodium bonds ionically with chlorine? तो क्या हो सकता है, सोडियम एटम loses an electron and it will form Na+, तो इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट आएगा आपका डी ऑप्शन, Na+ बनाएगा and chlorine atom gains an electron to form chloride ion। 15th is hydrogen chloride is soluble in water because it is an, क्या है, आयोनिक कंपाउंड है, नहीं है, पोलर कोवेलेंट कंपाउंड है क्योंकि डिस्टेंस इक्वल नहीं होता, तो यस इट इज पोलर कोवेलेंट कंपाउंड। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 2, फिगर बिलो illustrate the apparatus used in the laboratory preparation of nitric acid दिखाया है, R and S यहाँ पर रिटॉर्ट के अंदर है और नाइट्रिक एसिड आपका वहां कोल्ड वाटर से रिएक्शन के बाद बन रहा है ठंडा करके। तो अब इसमें क्वेश्चन रिलेटेड इसके साथ जो है वो है हमारा नेम R एंड S, इसमें नेम R एंड S क्या है, R एक लिक्विड है, अब R अगर लिक्विड है तो वो लिक्विड इसमें क्या हो सकता है, कंसंट्रेटेड फॉर्म में, हमने इसमें कौन सा एसिड लिया हुआ है, सल्फ्यूरिक एसिड, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इज R एंड S इज अ सॉलिड, तो सॉलिड है S, तो S इनमें से क्या हो सकता है, इट इज पोटेशियम नाइट्रेट और सोडियम नाइट्रेट, क्योंकि उन्होंने नेम दिया है तो आप पोटेशियम नाइट्रेट का फॉर्मूला भी लेंगे KNO3 और उसको नाइट्रे कहते हैं, either you can write this or you can write potassium nitrate completely, similarly NaNO3 जिसको चाइल्ड सॉल्टपेटर कहते हैं, और you can write complete sodium nitrate, आपको पूरा आंसर क्योंकि नाम देना है तो सोडियम नाइट्रेट वर्ड लिखिए। Why should we use only glass apparatus in the laboratory preparation of nitric acid? Because HNO3 vapors attack rubber और cork अगर हम कोई और मटेरियल यूज करेंगे। Write an equation to show how nitric acid undergoes इसके अंदर डिकम्पोजिशन कैसे हो रहा है। This is 4HNO3 बैलेंस्ड है, हीट करेंगे, एरो पे हीट का साइन देना है आपको, it will form 2 water molecules, then 4NO2 and then oxygen. So complete decomposition of nitric acid. What do you observe when copper is oxidized by concentrated nitric acid? Okay, copper and concentrated nitric acid. For balancing we have to put 4 here. It will give copper nitrate. For balancing we have to give 3, for 2 water and then 2 NO2. बट क्वेश्चन इसका नहीं है, अगर आप सिर्फ रिएक्शन लिख रहे हो कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे क्योंकि क्वेश्चन ऑब्जर्वेशन पे है। तो ऑब्जर्वेशन क्या हो रही है, इसके अंदर 2 ऑब्जर्वेशन वी कैन सी। सबसे मेन तो एफरवेसेंस ऑफ रेडिश ब्राउन NO2 गैस, तो हमें लिखना है कि रेडिश ब्राउन कलर की एफरवेसेंस आई है, वो किसकी आई है, NO2 की, इसकी आई है, NO2 की जो वेपर ब्राउन कलर की वेपर्स आ रही है रेडिश ब्राउन, ये मेन ऑब्जर्वेशन होगी। या फिर सॉलिड कॉपर जो है वो सॉलिड कॉपर जो है वो कॉपर नाइट्रेट बन रहा है जिसका कि डीप ब्लू सॉल्यूशन आ जाएगा कॉपर नाइट्रेट का, सॉलिड कॉपर डिसॉल्व हो गया। 2 ऑब्जर्वेशन है, वैसे मेन हम गैसेस का लिखते हैं इसके अंदर, तो रेडिश ब्राउन एफरवेसेंस ऑफ NO2 इज प्रोड्यूस्ड, ये आपको लिखना है इसके अंदर, मेन सबसे वही है। नेक्स्ट इज मैच कॉलम 1 विद कॉलम 2, इसके अंदर मैच के लिए थोड़ा सा पेज जंबल हो गए हैं। दिस इज क्वेश्चन, मैच करेंगे। अमोनिया को आप किसके साथ कर सकते हैं, अमोनिया में 3 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं विद 3। देन कार्बन टेट्राक्लोराइड इज अ CCl4 नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बिकॉज द बॉन्ड इज एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम बोथ। Now sodium chloride, this we all know that this is the electrovalent bond or ionic bond you can say। Nitrogen, this is a triple covalent bond क्योंकि N और N के बीच में 3 लाइंस आपने शो करनी होती हैं। Oxygen is double covalent bond, this is 2। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आपको 5 मार्क्स के लिए दिया गया है।
Now name the following. A salt which is soluble in hot water but insoluble in cold water. तो नाम लिखना है आपको. This is lead chloride. PbCl2 हम लिख सकते हैं, बट क्योंकि यहाँ पर हमने नाम लिखना है तो आप पूरा लिखेंगे दिस इज lead chloride. An alkali in which both copper hydroxide and zinc hydroxide can be dissolved. तो 2 पेजेस पढ़े हुए हैं आपने 4th चैप्टर में. दिस इज अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH. Ammonium hydroxide. The cation that forms a reddish brown precipitate when its salt solution reacts with a strong alkali. तो ये cation कौन है? This is ferric. Fe3+. नाम भी लिखिए, फॉर्मूला भी स्लैश डाल के फेरिक आयन लिखिए Fe3+. The law which states that equal volume of all gases at the same temperature and pressure have the same number of molecules. This is Avogadro law. तो एवोगैड्रोज लॉ ये आपने लिखना है इसके नाम में. नेक्स्ट इज पेज थोड़ा सा जंबल आए हैं इस पेपर में. 2 मेटल वायर और प्लेट थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है. दिस इज इलेक्ट्रोड्स. आपको पता ही है ये हम इलेक्ट्रोड्स के लिए बोलते हैं जो कि कैथोड और एनोड होते हैं. तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रोड्स, जिसमें से एनोड इज पॉजिटिव एंड कैथोड इज नेगेटिव. Now complete the following sentences by choosing the correct words. The IUPAC name for formaldehyde is methanol, क्योंकि सिंगल कार्बन होता है methanol. A black solid react with dilute sulfuric acid to form blue colored solution. ब्लू कलर का सोल्यूशन कॉपर के साथ ही जुड़ा हुआ है, तो कॉपर ऑक्साइड का जब होगा तो ब्लू कलर का आएगा. अगर मैंगनीज डाइऑक्साइड करेंगे तो उसका कलर जो है वो पेल पिंकिश कलर आ जाएगा. वो भी डाइल्यूट के साथ नहीं आता, वो भी कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड आता है. तो कॉपर ही करेक्ट आंसर है. ड्राइंग एजेंट नॉट यूज्ड फॉर ड्राइंग अमोनिया इज CaO. तो हम यूज ही करते हैं. दिस इज P2O5 पेंटाऑक्साइड, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड. सॉल्ट फॉर्म्ड व्हेन आयरन रिएक्ट्स विद डाइल्यूट HCl इज. कौन सा सॉल्ट फॉर्म हो रहा है? दिस इज FeCl2 प्लस हाइड्रोजन भी बनती है. Ammonia react with excess chlorine to form NCl3. This is नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड फॉर्म करेगा और completely रिप्लेस कर देगा एटम्स जो अमोनिया के अंदर हैं. Now draw the structural diagram. इथेनॉल का डायग्राम हमने बनाना है. इथेनॉल के डायग्राम के लिए 2 है कार्बन, हाइड्रोजन आ जाएंगे और इथेनॉल में CHO है. इट मीन्स डबल बॉन्ड O और एक H यू हैव टू शो. बाकी H आपको सेटिस्फाई करने के लिए बनाना है. दिस इज इथेनॉल. नेक्स्ट इज एसिटिक एसिड. इथेनॉल का फॉर्मूला CH3CHO हो गया और एसिटिक एसिड का CH3COOH हो गया. तो क्या फर्क पड़ेगा? ये C डबल बॉन्ड O है और एक तरफ हम OH पूरा लेंगे तो ये आपके पास CH3COOH बन जाता है. O और H में भी चाहो तो आप बॉन्ड ले सकते हो, बट अदरवाइज आपको ये बाकी के हाइड्रोजन की वैलेंसी सेटिस्फाई करनी है कार्बन के साथ. नेक्स्ट इज 2 ब्रोमोप्रोपेन. 2 ब्रोमोप्रोपेन. तो प्रोपेन की चेन हो गई 3 की. सेकंड पोजीशन पे ब्रोमीन है और बाकी सिर्फ हाइड्रोजन की वैलेंसीज को आपने सेटिस्फाई करना है. जितनी भी प्लेसेस बच रही हैं हाइड्रोजन जरूर आना चाहिए वहां पे. ये इनके स्ट्रक्चरल डायग्राम हो जाएंगे. नाउ इन बी पार्ट गिव द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसमें हम लॉन्गेस्ट चेन को सर्च करेंगे. तो दिस लॉन्गेस्ट चेन विल बी 1, 2, 3 एंड 4. लेकिन सेकंड पोजीशन पे ये हमारा यहाँ से एक और मिथाइल ग्रुप आ रहा है. अगर हम इस तरह से लॉन्ग लेते तो 1, 2, 3 तो हमारी छोटी चेन बनती, यानी प्रोपेन की बनती. अभी ब्यूटेन की बन रही है, बट हमारे पास सेकंड पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप है. तो 2 मिथाइल और चेन किसकी हो गई? ब्यूटेन. तो 2 मिथाइल ब्यूटेन है. हालांकि ये थोड़ा सा इनकरेक्ट है क्योंकि 3 पे कार्बन की वैलेंसी यहाँ पर सेटिस्फाइड नहीं है, तो यहाँ कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए हमें हाइड्रोजन लगाना पड़ेगा. सिमिलरली जो सेकंड पार्ट है वो भी इसका पूरी तरह से करेक्ट नहीं है. यहाँ तो ये कहीं पे डबल बॉन्ड इन्होंने छोड़ दिया है. तो अगर यहाँ पर इसकी सेटिस्फाई हम करते हैं तो यहाँ एक अगर डबल बॉन्ड है तो कार्बन की 4 वैलेंसी सेटिस्फाई होंगी इधर भी और इधर भी. तो अगर हम इसको यहाँ से लेंगे तो हमारी नंबरिंग यहाँ से है 1, 2 और 3. तो सिंगल बॉन्ड से तो ये इनकरेक्ट डायग्राम है. डबल बॉन्ड से बनेगा तो ये प्रोपेन आ गया और प्रोपेन में क्योंकि आपके पास यहाँ डबल बॉन्ड आ गया फर्स्ट पोजीशन पे ही है तो प्रोपेन और फिर डबल बॉन्ड के लिए हम क्या लगाते हैं? इन. तो प्रोपीन बन जाएगा. प्रोपेन 1 इन. तो यहाँ फिर आप प्रोपीन भी लिख सकते हैं, पर इसमें गलत नोट पे मैं सेक्शन ए को फिनिश नहीं कर सकती हूँ. आई एम सॉल्विंग 1 क्वेश्चन फ्रॉम सेक्शन बी ऑल्सो.
क्योंकि इसमें इनकरेक्ट है, एक डबल बॉन्ड भी, पीछे वाले में भी। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 3, ओनली वन क्वेश्चन फ्रॉम सेक्शन बी। एलिमेंट्स ए बी सी एंड डी ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यू कैन सी इसमें 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 1 है, 5 है एंड इसमें भी 1 है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आइडेंटिफाई द एलिमेंट दैट विल फॉर्म एन अल्कली व्हेन रिएक्टेड विद वाटर। तो वाटर के साथ अल्कली फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स बना सकते हैं। तो 281 आपको पता है ये सोडियम का ही फॉर्मूला होता है, तो इसमें डी इज करेक्ट, जिसमें आपके पास ये वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ रही है 2, 8 एंड 1। स्टेट द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड फॉर्म्ड व्हेन डी रिएक्ट्स विद सी। तो डी जब सी से रिएक्ट करेगा, सी का क्या आ रहा है, सी का 2 और 5, इसके पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो डी के पास तो एक अल्कली मेटल है, लेकिन सी के पास 3 माइनस है। तो जब हम इसका बॉन्ड बनाएंगे तो इसका 3 क्रिस क्रॉस करके नीचे आएगा, इट विल बिकम D3C। तो सेकेंड पार्ट के लिए योर आंसर विल बी D3 एंड देन C। चाहे हमें एलिमेंट का नाम पता है, पर हमें सी डी में ही आंसर वी हैव टू गिव। द रिएक्शंस ऑफ 4 डिफरेंट ऑक्साइड W, X, Y एंड Z आर गिवन बिलो। W reacts with hydrochloric acid but not with sodium hydroxide। तो एसिड से रिएक्ट कर रहा है, बेस से नहीं कर रहा है। फ्रॉम द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड अबव आइडेंटिफाई द ऑक्साइड विच इज एम्फोट्रिक। आपको इसके अंदर बताना है कि एम्फोट्रिक कौन है। तो एम्फोट्रिक कौन होता है, जो दोनों से रिएक्ट करता है। तो X रिएक्ट्स विद, यहाँ पर आया बोथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट कर रहा है, तो एम्फोट्रिक में हमारे पास आंसर आएगा X है इसके अंदर। नेक्स्ट इज एसिडिक कौन है, तो एसिडिक के लिए आगे जाइए। वाइट डज नॉट रिएक्ट ईदर भी, दोनों से ही नहीं कर रहा। Z रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो Z जो है वो बेस से रिएक्ट कर रहा है, लेकिन हाइड्रोक्लोरिक एसिड एसिड से रिएक्ट नहीं कर रहा है, इसलिए एसिडिक इनमें से कौन हो गया, Z एसिडिक हो गया। X जो है वो एम्फोटेरिक है और Z जो है वो एसिडिक आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट इज नेम R&S वाला, ये हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। नेक्स्ट इज थर्ड पार्ट ऑफ द सेम क्वेश्चन। 20.2 ग्राम ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट इज डिकम्पोज्ड बाय हीटिंग अकॉर्डिंग। तो पूरा न्यूमेरिकल आ रहा है, तो दिस वी हैव टू सॉल्व। मैं आपको क्लैरिटी के लिए एक बार और लिख देती हूँ। दिस इज KNO3, इट इज गिविंग KNO2 एंड देन ऑक्सीजन। पर बैलेंसिंग हेयर 2 is there, 2 is there। तो इसकी 2 वॉल्यूम उसकी 1 वॉल्यूम जनरेट कर रहा है। नाउ कैलकुलेट द फॉलोइंग। वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस ऑब्टेन्ड एट STP। तो वॉल्यूम के लिए आपको पता तो है ही कि कितनी कितनी ऑक्सीजन आ रही है। पहले हमें सबके लिए मॉलिक्यूलर मास निकाल के रखना है। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ पहले KNO3 का कैलकुलेट कर लेते हैं। इट इज इक्वल टू इसका 39, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16 × 3 मीन्स 48 हो गया आपके पास। तो टोटल मिलाएंगे, इनको प्लस करेंगे तो इट विल बिकम 101। तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू कितना रहता है आपके पास, गिवन इसका मास है 20.2 ग्राम। तो गिवन मास, एन का फॉर्मूला मैंने आपको पिछले न्यूमेरिकल में भी दिया था, एन इज इक्वल टू जो मॉलिक्यूलर वेट आपको गिवन है डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास। वेट गिवन है आपको 20.2 ग्राम और मॉलिक्यूलर मास आ रहा है 101। इसको कैलकुलेट करेंगे आप, डेसिमल हटेगा, ये आया तो नीचे 1/10 यानी कि 0.2 मोल। तो KNO3 का 0.2 मोल भी है। नाउ अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस ऑब्टेन्ड एट STP। अब कितने हमारी 2 वॉल्यूम पे इसकी 1 वॉल्यूम हो रही है, यानी कि इसके 0.2 मोल ऑफ KNO3 विल गिव 0.1, उसका हाफ हो जाएगा 0.1 मोल ऑफ O2। तो 0.1 मोल पे आपके पास N का फॉर्मूला हमने करा हुआ है, वॉल्यूम कितनी आ रही है डिवाइडेड बाय 22.4 है। हमें इस क्वेश्चन में वॉल्यूम ही बतानी है, तो जो भी N आया यानी कि नंबर ऑफ मोल्स इनटू 22.4, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो डेसिमल एक बार और इधर शिफ्ट हो जाएगा, इट विल बिकम 2.24 लीटर आपके पास आ जाएगा नंबर ऑफ मोल। ए पार्ट का आंसर, दिस इज फॉर ए पार्ट। नाउ बी पार्ट, मास ऑफ KNO2 फॉर्म्ड। तो पहले मास के लिए हमें उसका भी मॉलिक्यूलर मास निकालना पड़ेगा ऑफ KNO2। K का कितना है 39, देन 14, 16 × 2 32। तो इसको प्लस करेंगे तो यू विल गेट 85 के हिसाब से। अब फिर यहाँ पर हमने इसका मास निकालना है, तो मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स KNO2 के कितने हैं, इसके भी 2 है तो इसके भी 2 है, यानी इसके भी 0.2 है तो इसके भी 0.2 मोल ही वेट टेक। तो 0.2 इंटू 85 इसका मास आ रहा है। अभी हमने निकाला मॉलिक्यूलर मास, इट विल बिकम 17 ग्राम। तो मास ऑफ KNO2 फॉर्म वो हमारा 17 ग्राम आंसर आ जाएगा। आंसर फॉर बी पार्ट इज 17 ग्राम। आंसर फॉर ए पार्ट इज वॉल्यूम हमने लेनी है 2.24 लीटर। Now a student wanted to electroplate a spoon with silver. He tried 4 different setup to electroplate the spoon as depicted. तो अब फर्स्ट केस में आप देख लो, बैटरी है, सिल्वर है, इधर सिल्वर प्लेट लगी है, स्पून भी है, लेकिन इसमें गलती कहाँ पर हो रही है, इन्होंने सिल्वर नाइट्रेट का सोल्यूशन लिया है जो कि आपको पता है कि क्विक कोटिंग कर देगा, जिसकी वजह से कोटिंग रफ हो जाएगी।
सेकेंड पार्ट, अब इसे क्वेश्चंस क्या पूछ रहा है, आइडेंटिफाई द सेटअप मेड बाय द स्टूडेंट व्हिच वुड रिजल्ट इन द यूनिफॉर्म एंड स्मूथ इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ द स्पून विद सिल्वर। तो कौन कौन से कर रहे हैं, सिल्वर प्लेट है, सिल्वर प्लेट हमारी एनोड पे आ रही है, ये बिल्कुल करेक्ट है। उधर से स्पून है जिस पर इलेक्ट्रोप्लेटिंग होनी है, वो हमारी कैथोड बन रही है, तो ये भी इसके अंदर करेक्ट है। इसके अलावा इसके अंदर जो हमने लिक्विड लिया है सोडियम अर्जेंटोसाइनाइड सॉल्यूशन है, वो भी इलेक्ट्रोलाइट भी बिल्कुल ठीक है। तो इतने से हमारा क्यू सेटअप बिल्कुल ठीक है, जिसमें हमारी बिल्कुल स्मूथ और यूनिफॉर्म कोटिंग आएगी। दिस इज क्यू। Now next is in which setup will the coating on the spoon will be uneven। तो uneven किस में आएगा, मैंने बताया क्योंकि अभी सिल्वर नाइट्रेट है, इट मींस P में आपके पास uneven आएगा। Write the reaction taking place at the anode for the correct setup। एनोड पे आपको पता है ऑक्सीडेशन यानी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब Ag है एनोड पे, और एनोड डिसॉल्व हो रही है, तो यानी प्लस करके इलेक्ट्रॉन लूज करती जा रही है, जितनी सिल्वर डिसॉल्व होगी उतनी ही सिल्वर वहां पर डिपॉजिट हो जाएगी। With this, question 1 is over from section B also. With this, I conclude my today's video. Thank you for watching till the end. Keep watching, sharing and subscribe to my channel. But please don't forget to share with others. चाहे ये improvement paper है, but it can give a good practice to the other students who are preparing for final examinations. Thank you.